Hello, everyone. Welcome to another episode of the Stories Beyond CA. Today, we have a very special guest with us, someone who is not only incredibly intelligent but also hardworking. But also, she is one of the sweetest person that I have ever met. So, please join me in welcoming my CA final student, Vidushi Sharma. Hi, hello, Didi. How are you? I'm doing good. How are you doing? Just processing with my CA final results. Of course, it's been a week that the results were announced, and unfortunately, I could not get the opportunity to see the successful result on my mark sheet this attempt. But yeah, this was not my attempt, so I have to work a little bit hard. I have to study a little bit hard for my upcoming attempt. Yeah. So, have you realized one thing? The moment I asked you, how are you, you started to speak about your CA final result, right? So, this is how much we actually entitle, right? Or we attach ourselves to our degrees on the course that we are pursuing. Ki the moment somebody asks us how we are, we think about, what has gone through, what we have gone through our, in our course and, what is going on in our studies. Uh, and I know you have because I know you a lot, like since last 2 3 months, so I know there is so many things that you do just apart from the hard work that you put in your studies. So let's delve a little bit more into how my Vidushi Yes. is. Other uh, than other than if I talk about my studies, yes, I have been absolutely amazing. I am doing a lot of things on my own. I started doing a lot of things on my own. जैसे earlier I did not used to pay a lot of attention to my health or to my fitness, to my mental and physical health as well. But since last 6 to 7 months ago, I started, religiously working on my health, especially on my mental health. क्योंकि क्या होता है कि being an overthinker, because I consider myself an overthinker, तो मुझे पता है कि मेरा क्या क्या मेरे weak points and what are my trigger points. So Correct. I know how it feels to dive deep into the thoughts, the chain of thoughts. तो उसको तोड़ने के लिए जितना मेहनत उन थॉट्स को बनाने में लगती है, उससे दुगनी मेहनत लगती है उनको तोड़ने की. So that's Correct. something that I have been working on, and things have been working in favor for me, at least in this matter. Correct. उसके Correct. अलावा when I was done with my CA final exams, and the day when the results were announced, तो वो 2 महीने का जो पीरियड था, I got myself involved into a lot of certification courses just so कि मैं खाली ना रहूं. मुझे ऐसा ना Correct. लगे कि मेरे 2 महीने ऐसे ही चले गए. So I prepared for my SPM exams, both my SPM exams, and I cleared in the first go. And apart from it, I involved myself into some good certification courses. I tried learning some decent soft skills जो कि अभी मार्केट में जिनकी डिमांड चल रही है. So all in all, if I talk about my life in general, it's going good. Apart from CA, of course. ठीक है ना. See, triumph is one thing that will come. It will be a result of everything that you are doing. See, you said that you raised a one of the very important point in the beginning when you said that you worked upon correcting your mental health challenges, right? Because see, every student has their own set of challenges. Let's speak specifically about our own course. Yes. So I would say every CA student will have their own set of challenges, and one of that challenge is that we often feel that we are lonely in this journey, which I feel is the most, like for me it was the most struggling part. So you are surrounded by people all the time, but still you will feel that nobody else would understand what you are going through, right? And we go through that phase for a very long time, and then we suffer and suffer and suffer so much, and then one day we decide, no, this is done, this is enough, I have to get out of this and I need to work hard on improving my mental health. So what was your point when, where you decided, no, Vidushi, this is like enough is enough, let's do something about it? So what was that phase that you were going through? If you feel like, feel comfortable in telling us that and telling me, like, Yeah. what was that day when you decide, no?
I am done crying. I am Definitely. done feeling bad about myself. So it was last year around. It was last year when I gave the first attempt of my CA final. I was already मुझे already inter when I cleared it was IPCC. तो मुझे already IPCC में attempts लग चुके थे. I already took multiple attempts in IPCC. तो उसका burden already था मेरे back of the mind में. Even though I cleared, but there was something in my subconscious कि okay इतने attempt के बाद जाके अब clear हुआ है. उसके बाद फिर फाइनल के एक अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिए, वो नहीं हुआ क्लियर. तो वो और एक्यूमुलेट होता चला गया. तो जब ये सब चीजें हो रही थी और उस पर्टिकुलर लास्ट इट वाज May 23 व्हेन वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड शी क्लियर्ड द पेपर, शी क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. और कुछ और जो लोग मैं जिनके साथ में मैं बैच में पढ़ती थी, जो मेरे बैचमेट हुआ करते थे, उनका क्लियर हो चुका था. एंड दैट वाज द पॉइंट जब मुझे हिट हुआ कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो मेरे साथ का था या मेरे बैच में था सब निकल गए. एक दो रह गए थे, आई डोंट इवन रिमेम्बर देयर नेम्स, बट ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो चुका है और मैं अभी भी यहीं पर हूँ. मैं जहां पर 1 साल पहले थी, मैं अभी भी वहीं स्टक. आई एम स्टक एट द सेम प्लेस. फिजिकल प्लेस, मेंटल प्लेस, इमोशनल प्लेस, एवरीथिंग वाज सेम फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो तब जाके लगा, ऑफ कोर्स आई वेंटेड आउट अ लॉट, आई क्राइड माय हार्ट एंड माय आईज आउट, एवरीथिंग आई डिड. पर फिर एक पॉइंट आया कि यार कितना और कितना कर लूं मैं, कितना रो लूं, कितना रो लूंगी, कितना मैं इसका, मैं कितना इसकी माला जप लूंगी, हाय मैं फेल हो गई, हाय मेरे से कुछ नहीं हो रहा, हाय ऐसा वैसा. बहुत कर लिया. ऑलरेडी आईपीसीसी में रो लिया, सारी चीजें हो गई. फिर उसके बाद इंटर के फाइनल के 2 अटेम्प्ट लग गए. तो मुझे लगा कि यार अब बस देखा जाएगा जो होगा, भाड़ में जाए सारी चीजें, पहले मुझे अपने आप को संभालना है, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है. क्योंकि मेरे जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट के मार्क्स थे वर पैथेटिक लाइक एनीथिंग. मतलब मैंने तो ऐसे दिया कि हाँ ठीक है देखा जाएगा जो होगा. बट उसके बाद जब मैंने धीरे 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 अपने ऊपर काम करना शुरू किया, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट वाज हेल फॉर मी. इट वाज लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं उठ के भाग जाऊं कहीं, क्योंकि मेरे से नहीं बैठा जा रहा है. मुझे कोई कह रहा है कि मेडिटेट कर लो, मुझे ऐसा लगता है मुझे फोन दे दो मैं फोन चला लूंगी, या मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख लूंगी, या मैं लैपटॉप खोल के बैठूंगी. इट वाज सो इरिटेटिंग टू मी इन द इनिशियल पीरियड. देन आई क्योंकि उस टाइम पे सीए नेहा दत्ता वाज इन टॉक्स अ लॉट, तो आई केम टू नो अबाउट हर. एंड आई उनकी वर्कशॉप्स उस टाइम पे चल रही थी, इवन अभी भी चल रही हैं शायद. तो उस टाइम पे फॉर्चुनेटली उनका नेक्स्ट बैच लॉन्च होने वाला था, सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई. Let's see what how it goes. So I enrolled in the workshop. It was a 7-day workshop, and it created some good impact on me. It created some positive impact. I could learn some good insights from it. तो वहां से चीजें धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुई. वहां से मुझे समझ में आया कि यार हर चीज को इतना पकड़ करके, इतना पीछे पड़ के कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, सब कुछ यही है, बस सीए है तो लाइफ है, सीए नहीं है तो लाइफ ही नहीं है, ऐसा. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. दिस इज नॉट हाउ लाइफ इज. I am something beyond my papers, beyond my CA, beyond those 6 papers or 8 papers that I have to write. I am beyond those pass and fail and those unsuccessful and successful words. ठीक है मेरा clear नहीं हुआ, I agree. But what beyond it? I have other things as well to focus on my life. मेरी health है, मेरी family है, मेरे parents हैं, मेरे खुद की मेंटल सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं. सीए को मैं अगर पकड़ के मैं बैठ गई तो अब वो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैं बार बार दीवार में सर मार रही हूँ, वो नहीं फूट रही, तो इसमें मेरा नुकसान है. तो वहां से भी धीरे धीरे चीजें चेंज होना शुरू. वहां से मुझे पता चला कि अच्छा जर्नलिंग भी वर्क करती है. देन आई स्टार्टेड विद द जर्नलिंग. मैंने उसको अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट किया. फिर धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट की, फिर मैंने योगा इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया. तो धीरे धीरे चीजें ऐड होती चली गई. अभी क्या है कि दे हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, दे हैव बिकम द रूटीन ऑफ माई Your लाइफ. कि अगर habit, मैं, yeah. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मेरा ये भर जाएगा, मेरा ये भर जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी. तो Correct. मुझे लिखना है कुछ ना कुछ, भले ही मैं एक शब्द ही लिखूं, बट आई हैव टू राइट समथिंग. और इफ आई डोंट मूव, मैं अगर फिजिकली मूव ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या खो दिया. Correct. तो वहां Correct. से चीजें चेंज होना शुरू हुई. But एंड that's not. ऑल्सो इफ आई Hmm. टॉक,
part, how it impacted my CA. Of course, I did not clear in this attempt, but जो मेरे marks उस attempt के थे और इस attempt में they drastically improved. I'm failed just with some marks, just a couple of marks. I'm just unsuccessful with a couple of marks. जो करेक्ट. कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ओके मैंने कुछ किया अपने लिए, मुझे अपने लिए ग्रेटिफिकेशन मिला कि ओके मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने कुछ किया, कुछ तो पॉजिटिव किया अपने लिए. तो वहां से चीजें फिर मेरे लिए अच्छी होना शुरू हुई है धीरे धीरे. राइट. एंड दैट इज व्हाई वी से ना कि देखो, इस फेज तक आने के लिए, एक बहुत बड़े डार्क प्लेस से निकल के इस पे आने के लिए ना, इट इज अ जर्नी दैट यू हैव ट्रैवल. मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि Correct. ओवरनाइट यू विल लिसन टू समवन, ओवरनाइट समबडी विल कम एंड गिव यू द ज्ञान एंड यू आर लाइक नहीं, एवरीथिंग विल चेंज. वो 5-10 मिनट के लिए वो फीलिंग रहता है, एंड देन यू विल अगेन सल्क इनटू योर ओन ओवर थिंकिंग, योर थॉट्स दैट हैव बीन हॉन्टिंग यू फॉर अ long period. So you actually told us your entire journey, that you were suffering from exams का failure, and then there were people who were clearing, and everything start to impact. plus हम थोड़े से बच्चे भी रहते हैं, हम नादान भी रहते हैं, तो हम हमको ऐसे, if we attach our failures to our own self respect and we are like कि नहीं, we are not worthy of this and that. And then उसके बाद में the good thing is that you actually acknowledge that how CA Neha Datta actually impacted. Because trust me, even when I was suffering, like suffering in the sense I was failing continuously, right? Obviously, because I was doing my CA with my job, so I knew that I am not putting the required efforts. But that failure was still coming to me, like, as if I have put in every effort, but still I am failing. I was telling this to myself. वो lie मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पर था कि no, I am taking efforts, but I wasn't taking the efforts that CA final actually requires. But she came and actually told us on the internet. She was gutsy enough to tell the world that how many attempts she took, then the way she started helping Yes. students, encouraging. So there were time then I used to watch her videos on loop, राइट. देन थिंग्स थोड़ा आगे लाइफ में आगे जाता है, हम और मेच्योर होते हैं, हम और ग्रो होते हैं, देन वी स्टॉप टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, बिकॉज वी अल्टीमेटली नो कि उनका काम हो गया, उन्होंने आके अपने को बता दिया. नाउ शी टॉट अस टू टेक एक्शंस. सो देन वी लर्न, ओके लेट्स टेक एक्शंस. हमने वहां से ही सीखा. हमने ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे लाइफ में इंस्पायर करते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, जिनको हम ऑब्वियसली इग्नोर ही करते हैं, वो हमको बचपन से वही सिखाते हुए आ रहे थे, बट वी इग्नोर्ड. बट somebody came, नेहा दत्ता came, or somebody else will come on the internet and they will say, and we are like, हाँ हाँ, ये कुछ तो अच्छी बात बोल रहा है, because they have more likes and comments in Correct. their videos. So ठीक है, we are that generation who goes by likes and comments and all that you have improved in life. I am telling you, see, if when we talk about a journey, we see कि एक journey का जो छोटा छोटा habitual में impact लाया, and when you say कि now it has become part and parcel of my life, मतलब you have made all those habits, and those things will die when you die, right? Imagine for next 30-40 years that Right. habit is going to continue with your life, because कि इनके बिना चलने ही नहीं वाला है अपना, right? Thank you. Good, yeah. Yes. And that's why we said कि this podcast, the whole idea of having this podcast was that I wanted to bring out the stories beyond CA. Because हम ना at the age of maybe 16-17 we choose CA, ठीक है, 16-17 के time पे, but we were something before that age, यार. Come on, we have done so many Yes. things, so much, when we were like not even that intelligent, या हमको इतनी सारी चीजें, ज्ञान की बातें भी नहीं मालूम होती थी, बट वी हैड डन सो मेनी थिंग. मतलब आई कैन स्टिल रिमेम्बर मेरे बचपन की बदमाशियां या जो मैंने कांड करती थी. सो आई वांट टू टॉक अबाउट मोर ऑन दिस पार्ट, लाइक हाउ वाज विदुषी व्हेन शी वाज अ किडो. I, in my school time, I was a brilliant student. I would say above average. In 12th, I was the head girl of my school, and I scored around 92% or something in my 12th standard. क्या बात है. And I was a very good dancer. I'm even a good dancer now. At least I can call myself that. क्योंकि जब भी मेरे को मेरे टीचर्स मिलते थे या जो मेरे पुराने टीचर्स थे वो मिलते थे, ओ विदुषी वी मिस योर डांस, ओ विदुषी हाउ आर यू, एंड यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनीथिंग. So it used to feel good कि okay, beyond academics people also remember me for something else. एंड इवन अभी भी अगर मुझे मेरे कोई जूनियर्स मिल जाते हैं, हाउ आर यू दीदी, आपका डांस हमें बहुत पसंद है, वी मिस यू सो मच, आप हेड गर्ल थे ना हमारे टाइम में. इट एक्चुअली मेक्स मी फील गुड कि ओके आई एम समथिंग, कुछ ठीक है, बहुत ऐसे सीना चौड़ा कुछ
नहीं किया है, बट ठीक है, इवन माय टीचर्स और माय जूनियर्स रिमेम्बर, दैट इज मोर देन इनफ। और क्या Yeah, करना। it feels और good, so यार. I, Yeah. it feels really good. And also I sometimes I used to have bunked a lot of my classes in my school with my friends and all. And it was, yes, it was, मतलब एक अलग ही मजा आता है उसमें, ठीक है। एंड देन आई वाज द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल, एक तो मेरे हाथ में पावर थी, उसके ऊपर से मैं बंक कर रही हूँ, तो वो एक अलग मजा आता था कि भाई अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने च भगवान है, वैसा वाला फीलिंग था वो हमारा. हाँ, हाँ, वैसे फीलिंग आती थी। और फिर गार्ड भाई अंकल को या गार्ड साहब को मना किया, अरे ठीक है हम अभी आ जाएंगे ऐसे कैसे, तो वो भी हाथ के बटाते कि अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना, ऐसे ऐसे करके। तो these were some sweet and cherishable memories। अच्छा पढ़ाई का ऐसे कोई याद नहीं रखते कि अच्छा कितने स्कोर आया, क्या हुआ ऐसे, ये सारी चीजें सब याद रखते हैं कि कितनी बदमाशियां करी, कौन कौन से दोस्त बनाए, कौन अभी तुम्हें याद करता है, या इस तरह की एक्स्ट्रा कौन कौन सी एक्टिविटीज में तुम पार्ट लेते थे या पार्ट लेती थी, या कैसा था तुम्हारा स्कूल लाइफ, ये सब चीज, ये दीज आर व्हाट्स रिमेम्बरिंग आई गेस। करेक्ट, करेक्ट. एंड पता है एक बहुत अच्छी चीज, जैसे मतलब आप जो ये सब चीजें करते थे ना, उससे आपका पर्सनालिटी पता चलता है. वो पर्सनालिटी हम बचपन में ही बनाते हैं, लाइक हमारी हरकतों से, हमारे जितने हमारे कांड रहते हैं. लाइक हम मस्ती भी बहुत करेंगे, लेकिन हम हेडगर्ल भी बहुत रहेंगे, हम अच्छा स्कोर भी करने वाले हैं, हम अच्छा डांस भी, पीपल विल रिमेम्बर अस फॉर एवरीथिंग. बट ये सब के चक्करों में ना हम खुद को ही भूल जाते हैं. बिकॉज वेन वी टेक अ डिसीजन लाइक सीए, विच इज वेयर वी आर बाउंड टू फेल, कभी ना कभी वो होने ही वाला है कि वे मे फेल, हमारी मेहनत कभी कम पड़ जाएगी सीए, लेकिन वी अटैच एवरीथिंग, ऑल आवर खुशी एंड एवरीथिंग टू दिस. मतलब 16-17 साल हम लाइफ जी कर आते हैं यार सीए में, बट सडनली हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ ही सीए से शुरू है, हम इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं इस चीज को. एंड इन नो पॉइंट आई एम डिमीनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, राइट. सी, जैसे वन मोर थिंग यू सेड कि यू नो व्हेन यू बिकेम हेड गर्ल यू हैड द पावर, राइट, उस टाइम पे. तो सेम थिंग, उसी इंटेंशन से कहीं ना कहीं तुम सीए भी यही किसी हैसियत से करते हो कि यार वंस आई बिकम सीए आई विल हैव पावर, राइट, मेरे सिग्नेचर में वो पावर है. सी, द डिसीजन टू डू सीए इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर अर्लियर पर्सनालिटीज, लाइक समवेयर वो अपनी पर्सनालिटी से बहुत ऐसा रहेगा, जैसे आई ऑल्सो फील कि आई एम वेरी अथॉरिटेटिव बाय नेचर. सो दैट वे दिस डिग्री विल हाँ, हेल्प इट, मतलब मेरा और पर्सनालिटी ऐसे चमकेगा इसकी वजह से. दैट्स व्हाई आई चोज कि नहीं नहीं मुझे सीए करना है. सो या दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये कनेक्टेड रहता है उसमें. Okay, so let's talk a little bit more about your bachpan. So where you studied when you said कि you cleared your 90, your 12th with 92%? Which school was that? I studied in the convent school. I'm passed out from the convent school. Convent Bareilly, Uttar Pradesh, है ना? Which convent school was it? Yeah. It was St. Mary's Senior Secondary School. St. Mary St. Senior Mary's Secondary Senior Secondary. School in Bareilly, Uttar Pradesh. Just for the audience, if anybody is watching from Bareilly, they can connect, with Vidushi, and just एक बार वो validation check करके आना जरा कि 92% थे, विदुषी डांसर थी या नहीं थी. जस्ट किडिंग, किसी को कुछ जरूरत नहीं है, हमको मालूम है हमने क्या किया रहता है यार. एंड Of course. tell us more about tell me one thing, like I really like to ask this question. So there is one embarrassing moment, कुछ तो बहुत ही भलता हुआ होगा विदुषी लाइफ में, ठीक है, which will haunt you till the day you die. ठीक है. और अक्सर वो पहले बहुत बचपन में ही हो गया हो रहता है यार, समवेयर, मतलब बचपन में नहीं, थोड़ा सा ना एडोलसेंस वाली एज में Yes. कुछ तो बहुत ही गंदा सा हो जाता है, जिसकी वजह से ना इट विल नॉट लेट अस स्लीप आल्सो, मतलब कभी कभी नींद से उठा देगा. सो व्हाट वाज योर दैट योर मोमेंट व्हिच इज स्टिल हॉन्टिंग यू? I was in, I freshly passed out 12th and I was in CPT. So earlier when we had that Google Meet, I think before the results, and you were telling about some embarrassing moment of yours, and I would totally, I was really be able to relate कि आप जो जो बता रहे हो exactly similar lines पे ही मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ था when I was like 17, 18, 19 something, like एक टीनेज जारी होती है और एडोलेसेंस आता है, जो आपकी अडल्ट एज आती है, तो उस टाइम पे ये समथिंग सिमिलर हैपेंड विद मी. आई वाज इन टॉकिंग टर्म्स विद सम गाय एंड वी यूज्ड टू स्टडी इन द सेम अकाउंट्स ट्यूशन टुगेदर व्हेन वी वर इन 12th. सो उसके बाद वी बोथ ऑप्टेड फॉर सीए, और हमारी सीए की जो क्लास थी, सीए की कोचिंग सेंटर था, वो भी सेम ही था. सो वी हैड अ लॉट ऑफ, हमारा पूरा ग्रुप होता था फ्रेंड्स का, लाइक 10 to 15 people, and we used to go to
took coaching classes together. तो अभी the things started becoming so evident कि सबको नजर आने लगा कि okay, this something is going on between them. अब उस टाइम पे my CPT exams were like a week away or something, and I was busy so much in texting with him and so much engrossed that I did not. And I was sitting in my room, look, kamra halka sa darwaza shut down tha, and I was so much busy in texting him that I did not recognize that my mom was standing right in front of me, and she was looking at me, क्या कर रही हो? I had to, like बुक मेरी खुली हुई है, मैंने बुक के नीचे पहुंच पा रही नहीं नहीं कुछ नहीं कर रही है ऐसे. तो दैट वाज द डे. फिर वहां से चीजें ऐसे फिर तो ब्लास्ट ही हो गया. फिर तो मम्मी टुक माय फोन एंड शी पैक्ड माय बुक्स की नहीं करने दूंगी तुझे सीपीटी, और नहीं तू करेगी सीए तो ये सब करती है. पूरे रात फिर वो ड्रामा चला. फिर 2 से 3 दिन के बाद पापा को बताया. फिर मम्मी पापा दोनों मेरी कोचिंग क्लास में गए, जो अरे मेरे लिए बाप रे. सर थे जिनकी थी, उनसे बात करने की ये बच्चे आपकी कोचिंग क्लास में क्या क्या करते हैं, पढ़ने आते हैं और ये करते हैं. मैंने फिर बोला कि नहीं आप ऐसे मत करो, मत आओ ये वो. फिर माय पेरेंट्स टॉक टू दैट गाय एंड दे उसको समझाया कि नहीं अभी तुम लोग की ऐसी नहीं है, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करो या जो भी है जो भी चीजें हैं. फिर घर में आके मुझे फिर अलग सुनाया गया. फिर मुझे बोला कि नहीं इफ यू लाइक हम तभी तुमको इतना वो देंगे जब तुम क्लियर कर लोगी सीपीटी, और एल्स यू हैव लॉस्ट आवर ट्रस्ट. तो फॉर्चुनेटली मेरा सीपीटी क्लियर हो गया था पहले अटेम्प्ट में. तो आई क्लियर्ड माय सीपीटी. फिर तो सारी चीजें सब इधर उधर हो गई थी सारी बातें. बट दैट इज समथिंग जो अभी भी मुझे हॉन्ट करती है, कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से बात की मम्मी है तो नहीं, हाँ. वो ये अरे, दिमाग में छप जाता है. एंड पता है एक बार ना जब ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाता है ना, तो दे पता है उनके कुछ शब्द बहुत चुभते हैं. जैसे कि उन्होंने बोला कि ये तो मेरे बहुत. डैड ने मुझे ऐसा बोला था कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी. इतना ही सिंपल बोला था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी. और मुझे लगा था एग्जैक्टली. बाप रे मैंने क्या काम कर दिया है. मतलब एट दैट हाँ. टाइम ना, एट दैट एज, कोई ऐसे घर से भाग गई है लड़की ना, उस जमाने बहुत चलता था कि अरे उसकी बेटी भाग गई है, अरे उसकी बेटी लड़की. तो मुझे लगा कि मैंने उस लेवल का कुछ काम कर दिया है, बिकॉज तब हमें लगता हाँ. था कि वो वर्स है. वो चीज हमको वर्स लगती थी, कोई कोई भाग गया. आज ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है लव मैरिज. बट उस जमाने में ऐसा सुनते थे, अरे उनकी बेटी भाग गई, अरे ये हो गया, अरे वो लड़के के साथ भाग गई. हाँ. मेरे को लोग उस लेवल पे के जा रहे हैं क्या हम यार, कि पेरेंट्स ने उम्मीद छोड़े. मेरे को ना आज इतना बुरा लगता है यार बात याद करके अभी भी, सच में. इट वाज सच में. सो बैड, ही वाज और स्टैंडिंग ऐसे इन. इंसिडेंट्स ना सेंसिटिव होते हैं, और ऐसी सेंसिटिव एज में होते हैं कि वो दिमाग में छप जाते हैं सच में चाहे हमको लगता है कि कितने यार भी आप हम बड़े हो बहुत ही जाओ. गंदे लोग हैं यार, सच में. हाँ. So yeah, I can, बिल्कुल. चलो ठीक है, but that has lightened up the mood and that's how यार we should keep या. on remembering कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है यार. ठीक है, इट्स ओके, नंबर लग अटेम्प्ट्स लगते हैं एंड एवरीथिंग, और भी चीजें होंगी, राइट. लाइफ इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग अस फॉर द And वर्स्ट थिंग्स, I अमूल. just wanted to add something. Yeah. Now when me and my mom, even sometimes, remember that incident, we talk about it. Of course, हंसी तो आती है. And when I asked my mom कि अच्छा मैं उस लड़के से बात करूं क्या दोबारा, हाँ कर लो, हम तुम्हारी शादी की बात भी कर लेंगे. So where is that guy now? Like, is he in Bareilly only? No, no, I don't know. I've not been in touch from a long time. He's in some NCR or something. He's doing some job or something. He dropped CA way back. He did not continue CA. He dropped Okay. CA way back, I think, in IPCC only. And after that, yeah, I did not have so उसका many उसका updates. But I उसका think last year लिंक्डइन or something, I saw his Instagram. क्या क्या सौ. I saw his Instagram or something last year or something. So then I came to know that he's into some job or something. He's working somewhere ठीक है, उसका in लिंक्डइन आईडी, NCR. Yeah. लिंक्डइन का वो दे देना, लिंक दे देना ना. एवरी ऑडियंस विल गो एंड गूगल. हम पेरेंट्स पेरेंट्स अगर नहीं आते उस दिन, मतलब तो फिर मम्मी नहीं आती उस दिन, तो कुछ ना कुछ विदुषी शर्मा सच एंड में फिर मेरा सीपीटी, हाँ, और फिर मेरा सीपीटी नहीं निकलता अगर मम्मी नहीं आती तो नहीं निकलता मेरा सीपीटी. दैट इज ये. ऑल्सो ट्रू, बिकॉज हम पूरे टाइम ही उसमें लगे रहते थे यार. आई एम टेलिंग यू, वो रात में जो मैसेजेस फ्री रहना, दिन में 500 हमारी दिन मैसेजेस रात पढ़. उसी से खत्म हो रही है, उसी से शुरू हो रही है. हम नॉनसेंस शायरियां भेजते थे यार विदुषी. सच में शायरी, आज तो मैं एक शायरी पढ़ू भी ना, Yes. बट उस जमाने में ना शायरी बहुत चलती थी, पता. वो दो चार वो एक शायरी उठा के सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं यार. वो मुकेश अंबानी जी के रिलायंस सीडीएम में और ये सब प्लान्स ने उस जमाने पे मैसेजेस बहुत सस्ता करके रखा हुआ था. ओह माय गॉड.
Then that is crazy. Such some crazy days to remember in our life यार. But ठीक है, कर सकते हैं, Can we अच्छा take लगता है. a हम्म. 1 minute break? Yeah. ऑल राइट, चलो इतने मूड लाइटन अप हो गया है तो लेट्स टेक सम मोर, एक फन सेगमेंट लेते हैं. एंड अगेन वी विल डू अ रैपिड फायर. So I'm going to ask you series of quick question and you have to answer with the first thing that comes to your head, right? Ready? Yeah, ready. Okay. What is your favorite study snack? Can you please What is your favorite your study voice? snack? Study snack. Chips, kurkure. Chips. अरे कुरकुरे specifically क्या? Okay. So are you a morning person or night owl? I'm both. I'm mixed. I'm Good. hybrid. Good enough. Good enough. So one way, one word to describe your experience in CA so far. Roller coaster. The roller coaster. Perfect. So अगर CA नहीं करते तो क्या करते? Banking. Banking. Yeah, Investment banking banking. preparation. अच्छा, बैंकिंग प्रिपरेशन, वो पीओ वाला एग्जाम. Yes. ओके. एंड so what is your go to stress buster? What's your, मतलब what do you do? Dance. Ah, lovely, lovely, lovely. So great answers. Again, let's move on to um something related to CA, because Sure. I need something from you, Vidushi. So there was a night. So when we started preparing, when you were preparing for your CA examination in for May 24 exam, and somehow you came across my channel, and we were studying together in the study with me. I was doing my own thing, and you were studying. There was a night, day and night के combination में मिला करके. I remember that you studied for 19 hours straight, right? Even though I left the live streaming and I went to sleep that night, you continued studying, and that 19 hours straight. So what was that day like, and what actually, what was going on in your head, and you like, no, I have to give that time, whatever happens, I'll continue. And that sums up to 19 hours. Like, I still tell people, then there was a girl with us, like, and there is a girl who studied for 19 hours straight. Obviously that is one of the extraordinary things, but what was going on in your head that day? Obviously, exams बहुत पास थे, around 1 week or 10 days ago. 10 दिन में पेपर थे, और मेरा एक शॉर्टकमिंग था कि अर्लियर आई वाज नॉट सो मच इनटू सो मच thoroughly prepared for my exams and all, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम मैंने वेस्ट किया. बट जो लास्ट के 20 days में when you came and you studied with us and you were used to sit with us, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक इफ मतलब आप जब वहां बैठ करके यू क्वालिफाइड, आपने सब कुछ आपने क्लियर कर लिया, वहां बैठ करके जब आप इतना अपनी नींद को पूरा सेक्रीफाइस करके जब आप हमारे साथ बैठ सकते हो, तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकती. मेरा तो पेपर है, आपका तो पेपर भी नहीं था. यू वर लाइक सिटिंग विद अस, यू वर देयर विद अस, यू वर कंटिन्यूअसली सेइंग कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितने पाप धो सकते हो धो लो, सब कर लो. तो फिर पता नहीं एक दिन ऐसा आया, आई वोक अप एट आई थिंक एट 4 or 5 in the morning. मैं सोई 3-4 घंटे, और फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ना चालू किया. आपका स्ट्रीम आई थिंक 10 बजे से शुरू हुआ था उस दिन. एंड चालू होते 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 उस दिन ऐसा था कि आई डिड नॉट हैव अ शावर. आई ओनली हैड माई ब्रेकफास्ट, आई स्किप्ड माई लंच एंड माई डिनर. एंड मैंने उस दिन कोई नैप नहीं ली दोपहर में. बस कंटिन्यूस आई वाज स्टडिंग. और जब भी मेरे को ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा था या कुछ ऐसा हो रहा था कि भाई अब नहीं पढ़ा जाएगा, इधर आई यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक इन द वेरी लाउड वॉइस कि भाई एकदम ऐसे दिमाग खुल जाए. या फिर
कुछ ऐसा देख लिया यूट्यूब पे कि भाई सब फ्रेश हो जाए, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। फिर जब बिल्कुल ही नेक्स्ट रात के 3-4 बजे या कुछ तो भी, जब मैं एग्जॉस्ट हुई, देन आई लाइक अब नहीं पढ़ा जाएगा। 19 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, अब इसको 24 नहीं बनाना, मुझे थोड़ा सोना है। Then I texted you and I voice messaged you that this happened. And of course it was something कि मैं बस यूट्यूब पे देख रही हूँ टॉपर्स या नॉर्मल नॉर्मल जो लोग भी हैं कि अरे हम तो 18 घंटे पढ़ते थे, हम तो ऐसा। तो मुझे तो लगता है भाई दिमाग की एक बैंडविड्थ होती है, एक मेंटल बैंडविड्थ, तब तक ही वो पढ़ सकता है। ऐसे 18 घंटे शायद वो फेंक रहा होगा, शायद ऐसे ही कह रहा करेक्ट, होगा। करेक्ट, करेक्ट। पर जब मेरे साथ ये चीज खुद हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, एक्सट्रीम मतलब कहते हैं ना कि एक्सट्रीम मेजर्स, एक्सट्रीम circumstances call for extreme measures. करेक्ट, That करेक्ट, was the time then when I realized कि भाई 18 घंटे 19 घंटे आपको देने पड़ेंगे। करेक्ट। I agree. And that is why I said no. I still give that example to people. Wasn't why I said that. See, nothing comes from, I particularly don't want to say anything which I have not experienced myself before. So when I talk about my CA journey, अक्सर मैं उन्हीं दिनों की बात ज्यादा करती हूँ. The day, those days when I decided that I want to be very, very disciplined. I didn't want to be the smartest person in the room. I just wanted to be disciplined because there has been a very, period of many, many years where I was not disciplined because the job was going on, everything was, everything is fun. Then why do I have to get up early and go to the library? And one day when I decided no, so I took a work from home ka long period because mere bahut sare classes baki the CA final ke. And I was blessed to have a boss like that, and it was a multinational company. The MD actually wanted me to clear my CAs ASAP, and he allowed me work from home. So what I used to do is I would take my laptop. I just figured out कि this library opens at 6 o'clock because उस library में जो एक बच्चा पढ़ता था वही वो library का ध्यान रखता था. तो he was sleeping in the library. So he would get up before 6, and he will fix everything over there, and then 6 बजे library शुरू हो जाती. तो I made sure that I wanted to be the first person to reach that library. And for a period of I think 3 to 4 months before my group 1 exam, that one sincere group 1 exam that I wanted to give, there I actually made sure that for 3 4 months I would just sit, I would go into the library at a, I will reach there by 6. I was the last person to leave at around 11. I will leave from that library in the evening. I'll come back. I'll just sleep. उस टाइम पे मैं टाइड करके एक ऐप यूज करती थी टू स्लीप, लेकिन उसमें म्यूजिक आएगा और उसको वो चलाते चलाते मैं सो जाऊंगी वो रात में. एंड आई वुड मेक श्योर कि मैं सिर्फ लाइब्रेरी पहुंच जाऊं, वहां जाके पढ़ना क्या है दैट आई विल फिगर इट आउट. पर मेरे लिए वो उठना, लाइब्रेरी पहुंचना, जो मैं स्कूटी से जाती थी और मेरे घर के कुछ 15-20 मिनट के रास्ते पर ही था वो लाइब्रेरी, नॉट वेरी फार. बट मेरा वो उठना, वहां पर पहुंचना और आलस नहीं करना, और मंडे टू संडे का वो साइकिल वो कंप्लीट करना, वो पूरा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग थिंग था. आई थिंक दैट ब्रॉट द डिसिप्लिन ऑफ सेल्फ स्टडी ऑन मी. अदरवाइज तो मैं नहीं करती थी, अदरवाइज तो मेरा लाइफ नॉर्मली सब कुछ वैसा ही चल रहा था. एंड that is the attempt. I score I think 178, but I was the happiest person in the world. Everybody was like, my boyfriend was like, नहीं थोड़ा और कर लेती तो थोड़ा और कर लेती थे. I'm like, नहीं dude, इसके पहले तो मुझे less than 100 मार्क्स आ रहे थे इन 4 पेपर्स. 200 चाहिए थे, मुझे लेस देन 100 मार्क्स आते थे. इस पेपर में मुझे 178 समथिंग आया. इसका मतलब आई हैव रीच्ड दैट बार. अभी तो थोड़े मार्क्स और लाने, पास तो मैं ऐसे ही हो जाऊंगी यार. डिसिप्लिन की कमी थी, आई ब्रॉट दैट, उसका मुझे रिजल्ट दिख रहा है. आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव दैट डे. मैंने 150 के ऊपर मार्क्स नहीं देखे थे यार विदुषी उसके पहले के अटेम्प्ट्स में. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. आई केम सो क्लोज टू 200. सो आई थिंक आई ब्रॉट दैट डिसिप्लिन, एंड उसकी वजह से ही मेरे दिमाग में ये फीड हो गया था कि यार वंस यू डिसाइड यू वांट टू स्टडी, you will study. What you need, a little bit of breaks, you take break ना. किसने मना किया है? Nobody is telling you to sit for a long hour. ऐसा नहीं होता है. If you sit for a long hour, then definitely your productivity will go down. But you use Pomodoro, you take proper breaks in between, 90 Yes. minutes पढ़ो, 20 minutes break लो, 90 minutes पढ़ो. उसमें जो तुम productivity लेकर के आओगे ना, जो effectiveness in your studies, वो नहीं आने वाला किसी और तरीके से. And it will help you sit for long hours. Final के level पे तो वो necessary होता है. एंड यू एंड आई आर नॉट द ओनली पर्सन. तब से जितने बच्चे बैठने चालू किया, आज भी वो आकर के ये बोलते हैं कि दोज लेट नाइट सिटिंग स्टडी सेशंस और द फुल डे स्टडी सेशन दैट हैव हेल्प्ड देम reach very close to passing marks. A lot of them have cleared and they have Yes. given the credit that those sessions helped them.
but a lot of them who did not even clear, they have their confidence कि बॉस वी हैव नॉट फेल्ड मिजरेबली बिकॉज हमने वो लास्ट के दिनों में 3 हफ्ते में वो मेहनत की है, 2 हफ्तों में वो मेहनत की, वो उससे हम यहाँ पर पहुंच गए। तो अगर शुरू से करेंगे तो यार हमारे मार्क्स किधर रहेंगे, राइट? तो I Right. know from where you are, like, connecting everything, and I also feel the same way. It is the discipline that we maintained is giving us the confidence कि नहीं यार थोड़ा मेहनत और हर हमारा हो जाएगा। Correct. Correct. Good, yeah, good. So, matlab, I think that is also the message for everyone who is listening to this, guys. Never discount study for long hours. माई थॉट अराउंड इज कि सीए एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसको भूलना नहीं चाहिए। नेवर कनेक्ट योर स्कूल का एग्जाम्स और या बीकॉम एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम्स इन इंडिया विथ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल पे ही रख करके देखो, एंड देन कंपेयर कि आईआईटी जेई वालों को कितना पढ़ना पड़ता है, सीए में कितना पढ़ना पड़ता है। आईआईटी जेई वालों को भी सीए टफ लगता है। दे सेड कि यार इतना हमको, मतलब यू विल से कि तुम सीए कर रहा है, तुम सीए है, तो वो लोग भी बोलते हैं अरे बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, जबकि वो भी बहुत पढ़ते हैं यार। वो बहुत कम उम्र से बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, मतलब दिन भर क्लासेस Yes. भी करेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उसी के लेवल पे रहने दो। लेट्स नॉट कंपेयर इट विद सम एग्जाम जिसका टफ, जिसका क्या बोलते हैं लेवल उतना टफ नहीं है, एंड फिर सोचो कि नहीं यार हमको, हम इतना पढ़ते हैं फिर भी इंस्टीट्यूट पास नहीं करता है एंड ऑल, राइट? सो some study techniques that you want to you have adopted in your preparations and that you want to tell it to students, that will definitely help, क्योंकि कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं लेकिन हम रियलाइज नहीं करते जब तक कोई बोलता नहीं है करके। तो आर देयर एनी टिप्स that you want to share with his students watching this? लास्ट का ना कुछ फाइव अब ठीक टेन है। सेकेंड फ्रीज हुआ है, तो अभी रीस्टार्ट करना है ना। हाँ। Okay. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि सबसे पहले ऑफ कोर्स द पोमोडोरो, जो बाय फार आई थिंक द बेस्ट टेक्निक आई कम अक्रॉस, और उसी से इतना बैठने का डिसिप्लिन, फिर प्रोडक्टिविटी, फिर ये सारी चीजें हुई। दूसरा, ऐसी कोई टेक्निक का नाम ऐसे ऐसा मुझे नहीं आता, या मुझे ऐसे स्पेसिफिक कोई टेक्निक नहीं है, बट जो मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करती थी वो ये था कि आई यूज टू स्टडी द थ्योरी सब्जेक्ट्स इन द अर्ली मॉर्निंग, तो 4 बजे उठ के या 5 बजे उठ के। उससे क्या होता था, एकदम दिमाग एकदम फ्रेश है, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई रात नींद ऐसे नहीं है। तो सुबह सुबह 3-4 घंटे का चंक एक साथ मैंने थ्योरी का लगा दिया, फिर पूरे दिन की मेरी छुट्टी हो गई। अब मुझे थ्योरी पूरे दिन नहीं पढ़ना, मैंने सुबह कर फ्रेश माइंड से थ्योरी मैंने पढ़ ली। उसके बाद आई एम डूइंग सम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और वट एवर द प्लान आई हैव फॉर द डे, मैं वो कर रही हूँ। तो इसके अलावा ऐसा कुछ मैंने टेक्निक ऐसा कभी कुछ अपनाया नहीं। हाँ, ये थ्योरी का मैंने जरूर किया था इन माई आईपीसीसी एंड इन दिस ऑडिट ऑल्सो, जिसमें जब लॉ था तो ऑफकोर्स तब, और जब आईपीसीसी था तभी थी। तो हाँ, ये जरूर मैंने किया था कि आई यूज टू स्टडी थ्योरी इन द अर्ली मॉर्निंग। बट ऑफ कोर्स अब रिजल्ट, जब एग्जाम्स पास आते हैं तो क्या सुबह क्या रात, फिर तो जब भी टाइम मिलो तभी भी पढ़ लो। That's so true, and very good thing that you said. Like, people who feel the pain of studying the theoretical topic, they can actually use the superpower of their brain that they have around 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock in the morning, so that मेहनत कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में पढ़ेंगे डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, बिकॉज हमारे दिमाग में 2000 क्या होता थॉट्स है ना चलते हैं। कि हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी की एक आइंस्टाइन विंडो होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, लाइक द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ देयर डे। इट कैन बी एनी टाइम, मे बी मिड डे, इवनिंग, नाइट, अर्ली मॉर्निंग। मेरा अर्ली मॉर्निंग, जो मुझे लगता है मेरा एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे। उस टाइम पे एकदम अच्छे से नींद हो के मैं उठी हुई हूँ, सुबह ब्रश करके मुंह पूरा धो के चाय बना करके बैठी हूँ, तो शांत माहौल, पूरा घर में सब सो रहे हैं। उस टाइम पे मैं एकदम थ्योरी लेकर के अगर बैठती हूँ तो दिमाग में तुरंत जाता है, उसमें मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती। 4-5 बार मैं मतलब Correct. सेंटेंस पढ़ रही हूँ तब जाके समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ा घुस गया दिमाग में। Right, तो ये definitely. चीज And है। students listening to this, please inculcate that. I 100% agree to this. This happens. I have also done the same thing. Like, मैं तो छत पे लेकर के जाना, किताब जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना सुबह के टाइम पे. That helps incredibly. Like, when you are reading concepts which are actually heavy, otherwise when you read them, right? Okay.
So very much connected to this, but let's see how audience is going to connect to this question. But there can be a one piece of advice that, like, you can give to your younger self, that you want to give. Is there anything, if you could तो just जैसे ये give? जैसे ये बहुत अमेजिंग है. Why? बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख. Good. दैट्स इट. So every time you feel थोड़ा low in life, you can say this out loud, right? तू जैसी ये Yes, बहुत अच्छी yes. है विदुषी. I keep on saying this to myself. I go in front of the mirror and I say this. I look into my eyes and I say, तू जैसी है तू बहुत सही है. तुझे कुछ नहीं चेंज करना अपने अंदर. जैसी है तू बहुत सही है. फील हुई ठीक है. अब नहीं हुआ फिर हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा. लेकिन तू कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ेगी अब. कॉन्फिडेंस I नहीं say this छोड़ने to का. myself. करेक्ट, करेक्ट. कॉन्फिडेंट, एंड यू आर ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक ऑल्सो. आई कैन फील, इट इज. एंड सिर्फ अभी से नहीं, जब से मैं आपको जानती हूँ तब से मुझे मालूम है कि कितने कॉन्फिडेंट बच्चे ही हो आप. तो मुझे ये मालूम है कि आपको वहां से निकलने के लिए टाइम नहीं लगेगा. मुझे रिजल्ट भी नहीं आया. आई नो इट इज विदुषी यार, मतलब विदु. but people are like, because you have to be, you've been so sincere. and whenever I used to be in my office during those days जब study with me हम करते थे, you would come back, come to the live session, and you will, like, actually मोटिवेट एवरीवन. सो पीपल वर सो कनेक्टेड टू यू. मतलब अभी आप उतने एक्टिव नहीं रहते थे, बट उस टाइम पे आप कितने एक्टिव रहते थे कि एवरी टाइम यू आर लाइक हेलो हेलो हेलो, एंड पीपल कुड हियर योर वॉइस कमिंग फ्रॉम योर मैसेज. उस टाइम पे तो कभी हम गूगल मीट पे मिले भी नहीं थे, राइट? वी हैव नेवर डन ऑल ऑफ Yeah. दैट. ये सब तो ड्रामे हमने अभी चालू किया है, गूगल मीट करना और ये सब करना. उस जमाने में तो इट वॉज ओनली चैट, लाइव चैट ऑफ यूट्यूब. मतलब वो उस पे, बट पीपल कुड हियर योर वॉइस, लाइक द मोटिवेशन कमिंग फ्रॉम हेलो हेलो हेलो, दैट थ्री हेलोज of Vidushi Sharma, and people will always remember this. मतलब they would want to see that energy back, and I hope that we go back to that. वो होगा Yes. एग्जाम्स ऐसे आने के एक डेढ़ महीने पहले वाला जो टाइम आएगा ना, जब सेल्फ स्टडी मोड में आ जाते हैं, क्लासेस खत्म, सब खत्म, पीपल It विल is कम bound टू to लाइव happen. स्ट्रीम. हाँ, हाँ. सब लाइन पे आने वाले हैं आपके. सबका सहारा अभी वही है. सच दीदी का में. लाइव चलेगा. पढ़ाई होगी तभी. सच में. एंड अभी पता है नीट एस्पिरेंट्स आते हैं यार. अभी रात में मैंने आई शेयर द स्क्रीनशॉट ना, रात में नीट I एस्पिरेंट्स saw आते हैं, एंड the दे विल video. टेल बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स वहां पर डिस्कस करते हैं. एंड आई एम लाइक, मुझे कुछ नहीं मालूम, बट तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम पढ़ो यार, क्या है. फिर सीए वालों को तो बच्चों को मैं Exactly. बता सकती हूँ कि भाई मेरा सीए हो गया. वो बोलते हैं तुम्हारा सीए हो गया, फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? अब मुझे सेम चीज बार बार लोगों को बताना पड़ता. तो आई ड्राफ्ट अ मैसेज नाउ एवरी टाइम, somebody asked, कॉपी पेस्ट कि भैया हो गया है मेरा सीए. पढ़ाने के लिए पढ़ रही हूँ मैं. और बच्चे भी अभी इतने अच्छे हैं ना यार, वो बता देंगे कि अरे दीदी का हो गया, दीदी पढ़ाती है, बैच लेती है, इसके लिए पढ़ रही है. मतलब हाँ. बच्चे भी बहुत एडवोकेसी करते हैं मेरी. मैंने बोला मेरा लोड कम करने के लिए ना बच्चे हैं, मेरे को टेंशन नहीं रहता है उसका. But that's really nice. Right. Hope we meet someday, in person. I would love to meet Very you, and maybe soon. post your, Yes. results. Like obviously you will become CA very soon, and that is something that I actually know. So we'll I have definitely. planned. अगर मुझे जॉब करने जाना है मुझे मुंबई जाना है. यार प्लीज वहीं प्लीज जाना है. आ जाओ दोषी, ताकि मैं प्लीज. दीदी आई को विल मिलूं. हैव यू ओवर हेयर यार. वाओ. प्लीज कम इफ व्हेनेवर यू डिसाइड ना. मतलब जीजू को भी ऐसे कन्विंस करना पड़ेगा, तुम फ्यूचर जीजू को. बट तुम वो दैट यू विल डू, दैट यू कैन डू. वो तो उतना कन्विंसिंग पावर है तुम्हारा सॉलिड. बट डू कम हियर. आई नीड फ्रेंड्स इन बॉम्बे, बिकॉज अभी मुझे भी एक डेढ़ साल हुआ है. आई Yeah. नो अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई वुड लव टू हैव माई ओन सेट ऑफ फ्रेंड सर्कल, जिनसे मैं सीए चलो. रिलेटेड, Yes. मेंटल हेल्थ इश्यूज वाली बातें करूं. काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी सफर्ड यार, हम किसी और से बातें नहीं कर सकते. वो Yes. सी फेलियर जिनको, या अटेम्प्ट जिन बच्चों को लगा है ना, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फ्रेंड्स ऐसे, राइट? जिनको भी एक आध को अटेम्प्ट लगा है, सो यू कैन शेयर योर फीलिंग कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर सामने वाला और हाँ हम यार जैसे आए. जो है ना एक्सपीरियंस जिनको अटेम्प्ट लग चुके हैं हमारे पास इतने एक्सपीरियंसेस है कि आओ हमारे साथ बैठो हम बताएंगे तो. हम बताएंगे दुख दर्द क्या होता है. जिंदगी भर का दुख दर्द हमने यहाँ पर ही सह लिया है. दैट इज सो ट्रू राइट. यार, दैट इज सो ट्रू. मतलब absolutely. And every time now, so every time any of the student would call me and they will say, मैंने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं बताने की, सब सब मुझे मालूम है सब. 14 साल लगे मुझे सीए करने के लिए, जो तुमने नहीं नहीं दीदी, आई टेल यू कि नवंबर 20 में क्या हुआ था. मैंने बोला नहीं, मुझे सब मालूम है तुमने क्या कांड किए. आई एम हेयर टू हेल्प यू कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में गलत ना करो. सो लेट्स टॉक फ्रॉम हेयर राइट. टू देयर, रादर देन टॉकिंग तुम क्या करके आए. बिकॉज आई बिलीव दैट 99.99% बच्चे जो मेरे पास आते हैं, जिस गलती के बारे में बात करने
लिखने वाले रहते हैं, वो गलती मैंने मेरे 14 साल की जर्नी में एक आध बार तो की ही है। तो आई हैड स्टॉप देम राइट देयर कि मैं सुन लूंगी तुम्हारा सब। और बच्चे भी बहुत बातू नहीं होते हैं, उनको सब कुछ बताना रहता है बाय द वे, है ना, ऐसे कि ये हुआ वो हुआ। मैं सब सुनती हूँ, बट आई विल टेल देम सब सुन लिया मैंने, अभी मेरा सुनो, यहाँ से तुम्हारे पास होने तक का जो जर्नी है, स्टे विथ मी, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और मैं एक ही चीज बोलती हूँ बच्चों को, आई विल नेवर हेल्प यू विथ एनी शेड्यूल प्लान फलाना, वो तुम्हारा अपना लुकआउट है, आप यू आर एडल्ट, यू हैंडल दिस। आई टेल यू द राइट स्टडी टेक्निक्स। द बेस्ट पार्ट इज आई विल सिट विथ यू। इफ यू वांट टू स्ट्रेच योर डे अ लिटिल बिट, 2-3 घंटा रात में स्ट्रेच करना, दिन भर खुद से पढ़ लिया है, आई विल सिट विथ यू, यू विल सी मी ऑन यूट्यूब लाइव, आई विल सिट विथ यू, you study. That's it, that's all you have to do. Matlab, CA is not for smart people, CA is purely for hardworking people. If you can, if be disciplined, Right. if you can study for long hours doing the questions concepts, you will be through. One day you are CA, like one day you are CA Vidushi Sharma. Definitely. That's for sure. Good. Are there any questions for me that you want to ask? Um, Other than my CA journey, that is something I'm not telling you in detail. Because you are gonna become the part of my, chota sa CA ka kitty circle. So I'll tell you these things in parts throughout your life. So apart from that, anything that you want. I have a question that I want to know. When you were studying for your finals and when you were not married yet, so how did you use to manage both the areas of your life, your relationship and your studies? रिलेशनशिप का ना मेरे पास एक एडवांटेज बहुत ज्यादा था विथ माय देन बॉयफ्रेंड। मतलब उसके पहले जो लोग थे, दे वर नॉट फ्रॉम सीए वाला फील्ड। सो दिस पर्सन वाज एक्चुअली अ लॉयर, राइट? माय करंट हस्बैंड, माय देन बॉयफ्रेंड वाज एक्चुअली अ लॉयर, एंड ही हैज सीएज इन हिज इमीडिएट फ्रेंड सर्कल। लाइक सो एक कैसा होता था, सेम मुंबई में कैसा, सेम ही कॉलेज के बच्चे, एवरीबॉडी इज लाइक ना, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मुंबई इज सेट ऑफ पीपल जो बहुत ही क्लोज रहते हैं एक दूसरे से। सो उनके कॉलेज में जो दोस्त थे ना, तो सेम सेट ऑफ कॉलेज, कॉलेज से 11th 12th इनका कॉलेज होता है। सो ये 11th 12th मतलब उनको जूनियर कॉलेज बोलते हैं। तो जूनियर कॉलेज में ही सब जो क्लोज फ्रेंड रहते हैं, कुछ सीए की तरफ जाते हैं, कुछ लीगल फील्ड में जाते हैं, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट वगैरह है, मुंबई में प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। तो सो माई हस्बैंड बिकेम लॉयर, बट हिज बेस्ट फ्रेंड्स बिकेम सीएस। सो ही वॉज ऑलवेज अराउंड देम। तो उसका भी ग्रूमिंग सीए वाले बच्चों के साथ में ही हुआ है, राइट? जिसकी वजह से ही न्यू की व्हाट सीए रिक्वायर्स। So when I met that person, and he, like, I told him कि मैं CA कर रही हूँ, and he was like, I'll help you with indirect tax, because he is indirect tax advisor in a law firm. So he always knew what I needed the most. Secondly, he was also a very studious person. So उसके लिए relationship वगैरह ये नहीं है जो मेरे लिए full, लेकिन चलो मजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। He would do everything, but he will make sure that I am studying when I am supposed to study, which to me felt like a crime. If I'm telling you that I want to go there, you come and take me over there. मतलब आई वुड फाइट, मतलब इतना क्वेरल, ऐसा मियाँ बीवी वाला क्वेरल होता था हमारा उस जमाने में, when we were six, when our relationship also just 6 months old, because I was like, no, I am telling you this, why are you not understanding कि मुझे ब्रेक लेना है? किस चीज से ब्रेक लेना है? एग्जाम पास में है, फिर भी ब्रेक चाहिए, किस चीज से ब्रेक चाहिए? पढ़ने का टाइम है। बट ओ माय गॉड, बट हैविंग हिम बाय माय साइड, स्पेशली सपोर्टिंग माय स्टडीज एंड टेलिंग मी कि नहीं मधु, वर्क फ्रॉम होम लो, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ाई करो, ही वाज कॉन्स्टेंटली डू दैट। सो ही विल नॉट स्पीक टू मी व्हेन आई नीड हिम, लाइक ही वाज नॉट देयर, ऑनेस्टली ही वाज नॉट देयर। एंड whenever I'll call him, he will simply say कि madhu, I'm with friends, I'll call you later. So to me, my relationship was going down the hill, but in his eyes he was actually helping me study, because if I'm talking to him, I am more distracted. So men are more logical, they उनका इमोशनल आई Right. EQ इज वेरी लो, राइट, वेरी लो, एंड हमारा EQ बहुत स्ट्रांग रहता है। हम लॉजिकली बहुत. उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सो वी नीड दैट इमोशनल सपोर्ट। दे आर लाइक, आई एम गिविंग यू टाइम टू स्टडी, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग? एंड आई एम लाइक, नो, आई नीड टू टॉक टू यू, Yes. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई नीड टू टॉक टू यू, आई वांट टू टेल यू स्टफ। एंड इज लाइक, आई एम विथ माय फ्रेंड्स, यू कंप्लीट दिस। Oh my God. So I thought this relationship is not gonna work at all. But once I started passing,
everything started to fall in place. Once I cleared, he also thought like, let's get married, let's, because he started planning around it कि मधु अभी तेरा ये ग्रुप हो गया, फिर ये भी ग्रुप हो जाएगा, let's get married, like he wanted to move the balls, like take things in motion, वो wheels in motion करने का उसका एंगल चालू था. But I was like, no, I am not becoming CA, इसके लिए बंदे को मैं चाहिए नहीं है, he will look for somebody who is more qualified and this and that. Overthink. So in my eyes, my relationship was not going well at all. And in his eyes, everything is going well. Why are she's always fighting? कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है. I'm like, नहीं, you talk to me. And he's like, so I'm like, नहीं देखो, लॉन्ग डिस्टेंस है, इसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. अगर तुम्हारे शहर की लड़की होती थी, मुंबई की होती थी, तो तुम उसके नहीं जाते थे क्या मिलने के लिए? उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था. I would give him all the bullshit reasons because I am just frustrated studying for long hours. So I feel that I did not manage my relationship well. I could be much more a mature person, but ठीक है यार, ये सब चीजें बाद में ही ज्ञान आता है. The goal was, for him, the goal was to make me CA as soon as possible, so that once I'm married, I can focus on the married life, I can focus on my professional life. My goal was somewhere diverted here and there, and I was also, like, initially it was like that only. So that is the reason it went to very complicated also. But ठीक है, that actually helped us understand each other really really well. Yes. हो गया, सब कुछ हो गया. आज शादी हो गई, शादी के बाद ग्रुप टू भी क्लियर हो गया. अभी सीए हूं मैं, अभी लेकिन एक के साथ में अभी क्या जिंदगी साथ में ही निकालनी है. तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, बट इट जस्ट कि आप आपके जर्नी पर हो और वो उनकी जर्नी पर है, तो नॉट नेसेसरली आप उनको समझ पाओगे पूरी तरीके से, वो आपको समझ, आप कोशिश करोगे, आप बात Of करोगे. course. लेकिन एक हमारे अंदर एक दुनिया चलती रहती है जो बोलती है कि नहीं यार, आप जो वो सही हो, सामने वाला गलत बोल रहा है. उसके मन में दुनिया चल रही है कि वाई शी इज थिंकिंग लाइक दैट, वो चीज हमेशा चलेगी. बट इन वो इन द clashes एंड, होते रहते हैं. हाँ, इन द एंड यू विल एंड अप स्पेंडिंग द लाइफ टुगेदर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ की चीजें टिकी रहती हैं, इवन दो व्हेन यू थिंक कि नहीं यार, मे बी इट विल नॉट वर्क. And that's exactly what's sticking to this all this. That's what makes it all worthy. That's so true. That's so true. He supporting me during the live study sessions. I remember once I Yes. went to that village जहाँ पर मैं, so he would Yes. make sure that live stream is still on, and बीच में network चला गया तो when I'm not there, I'm in my office, he will make sure that he will do that. So he is very supportive that way. When he sees me do the hard work, and he's like कि also he tells me कि थोड़ा सा calm down, आराम से होगा चीजें. But then he also हाँ. knows me since 5-6 years कि ये ऐसे ही है, इसको जो करना है वो हसल वाले मोड में ही रहने वाली है. So then he starts to support me, like कि ठीक है, she will sleep late, she will get up late also in the morning. And अभी वो marriage के बाद में it is also difficult to convince everyone Yes. around you Yes. कि why she is not getting up early and everything. But he will make sure कि नहीं, she हाँ. was writing on her book, so जिसकी वजह से उसको लेट हुआ ऐसे. So luckily I have got a very supportive husband. I hope to become like him, support him when he That's needs good. me. That's what. So that's it, madam. That's my, me managing my relationship and my studies together. It never went that well. The way I'm saying this, the smooth it looks now, But it in was the never end, this smooth. it did work out, right? Did In work the end, out. it all worked out. एंड पता है, मुझे ना एक छोटा सा उससे ना एक और एनालॉजी लगता है कि जब हम किसी चीज से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो हम उसको कितना बड़ा बनाते हैं यार. वी फाइंड इट वेरी Yes. डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दिस. एंड नाउ Now, सिटिंग हियर आफ्टर 4-5 years, व्हेन आई थिंक अबाउट दोज नाइट्स, आई कांट इवन थिंक लाइक कि व्हाई वन डे आई वाज quarreling with him over state board versus CBSE board for 1 hour, and that was complete ego fight. That was complete ego fight, talking about state board was it because I am from CBSE, he is from state board Maharashtra. कि why, मतलब 1 घंटा उसके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लड़ाई कर रही थी, वो भी उतना ही है, उतना ये इस चीज के. 1 घंटा हम लड़ रहे थे यार. क्या मतलब यार, इतनी जोर जोर से लड़ रहे थे, मतलब इट वाज नॉट ऐसा चीख रहे थे एक दूसरे को कि नहीं ये वो स्टेट बोर्ड में ये सिखाते नहीं, नहीं ये तुम्हारे यहाँ ये चलता है, हमारे यहाँ ये चलता है. अरे यार, कितना नॉनसेंस लड़ाई होते हैं यार, बाद में वो याद भी नहीं रहेंगे आपको. और उस हाँ, पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो चीजें होती है ना, तब आपको समझ में नहीं आता. लगता है कि भाई लड़ लो, बस अभी तो कर लो, बहस जितनी कर करेक्ट सकते हो. करेक्ट जब वो करेक्ट. पास हो जाता है मतलब,
लगता है क्यों किया हमने ये। Yeah, and Vidushi, I'll tell you one more thing. Now, what I have started to do is ना, मैं जितना मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, because I'm 31 plus now. I will turn 32 this year. I have started becoming very शांत. मतलब because I think मैंने वो वाला भी हिस्सा पार कर लिया है जहां पर मुझे लड़ना नहीं है अभी. Because now इसलिए नहीं लड़ना राइट। that I don't want to um, contribute to the relationship or contribute to anything. It's not about just him, it's about office also, it's about anywhere. If somebody is just trying to मेरे पीस को हिलाने की कोशिश कर रहा है, I'm like, I'll stay शांत. आई स्टेशन बिकॉज मेरे को मालूम है कि अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, ये डस्ट सेटल होने ही वाली है, उसके बाद में थिंग्स विल बी क्लियरर. तो समहाउ ये जो ज्ञान मैंने इंस्टा इंस्टा पे देखा होगा कहीं तो भी इतने सालों में, इट हैज स्टार्टेड टू फाइनली वर्क आउट ऑन माई हेड कि बॉस इतनी जल्दी नहीं ज्यादा सोचना है ना, डोंट थिंक मच, डोंट रिएक्ट मच, शांत रहो, डस्ट विल सेटल चीजें अपने डाउन, आप हो जाएंगी। थिंग्स विल बी क्लियर. एंड दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी डू a lot more thing, because when I am overthinking, I'm not productive at all. And these days when I'm doing so many things, Right. it is because my nature of being एकदम काम, आराम से शांति से लो चीजें समझो, इट इज हेल्पिंग मी टू बी मोर प्रोडक्टिव वर्क वाइज. राइट। एंड इट डज हेल्प, इट डज हेल्प व्हेन यू कीप काम, आप रहते हो ना शांत, तो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं और बहुत स्मूथली होती हैं। Right. And this is story this podcast is not about me. You realize that, right? I have been speaking from last 15 15 minutes, and now, in order to become a good It is so YouTuber, I nice should I should talking let to you people all the talk. time. It is so nice क्योंकि आपने तो इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो मन करता है बैठ के सुनो दीदी को, कितनी सारी चीजें हैं। But I'll still not no, never go back to my ये वाला story. मेरे को एकदम आंसू आता है यार उसके. Hey, one more thing I wanted to know about you is, what is your favorite, or what are your favorite travel places in India? आई वांट टू गो टू मन्नार once Oh, in my life. Munnar na Kerala, no? Yeah, Mannar, हाँ, yes, Munnar. Yeah. Kochi, Please take me Mannar. when you are going there, please. I have been wanting to Sure. go to Munnar. I even once booked flight during COVID, and I'm like, I did not get my certificate. उस टाइम पे ना ट्रैवल करने के लिए आपको कोविड सर्टिफिकेट लेना पड़ता था. So I did हाँ, not get my COVID certificate at that time, and उसकी वजह से I could not board the flight. I had booked everything for Munnar, and like there were two, three places that I wanted to do for 10 days. That was before my marriage. But yeah, please take me. I seriously want to go there. It's such a beautiful, it's my that dream is to go there. beautiful. एंड Yes, पता है विदुषी, इंडिया इज रियली ब्यूटीफुल यार, इट्स सो डाइवर्स, सो बहुत ब्यूटीफुल सब very यार, मतलब beautiful. पहाड़, नदी, क्या चाय बागान, ये बागान, आपको लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी क्या नहीं देखने मिलने वाला है यार, यू आप टेल हर मी. टॉपिक मतलब उनसे बोलती, you will never get enough of it. मेरे को वही लगता है मेरा लाइफ टाइम वैसे भी कम पड़ने वाला है. एक तो काम वाम में हम इतने बिजी रहते हैं, वैसे ही कम ट्रैवल करते हैं, और एक जब ट्रैवल भी करेंगे तो कितना ही कर लेंगे यार, एक लाइफ टाइम तो कम ही पड़ने वाला है. मुझे तो बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे लगता है यार Yes. पहले में ये देश कंप्लीट करना है यार मुझे, ये बहुत ही बड़ा देश है यार हमारा. Exactly. But have you been to Munnar Seriously. before? No, I really want to go. Good. I want to go to So Munnar, all the and places, huh, there's also this one place. It's a small town near Darjeeling. It's a place called Kalimpong. I've Kalimpong, heard of it okay. a lot. हाँ, तो I've heard of it a lot. तो वहाँ पे वहाँ के जो रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ के जो आर्किटेक्चर है, जो कल्चर हैं पुराने जमाने के जो होते थे, जो वहाँ की सीनिक ब्यूटी है, माउंटेन्स हैं, दैट इज समथिंग टू बी a treat to the eyes. Wow, I yeah. really want to visit it once as well. It's Munnar, Kochi, Kerala. It's unparalleled. Good, yeah, good. But first come to Bombay, after you clear your exams. Come here and Of course. see the life over here, and also then decide to stay here only. फिर यहाँ से हम travel करते हैं सब जगह, like your would be husband and my current husband के साथ में let's travel, वो couple नहीं, वो कैसे friends बन जाते हैं वैसे sort of, we can do that. Good, yeah, really good. And like out of these places, you have not been to these places. These are your dreams to fulfill. But are there any places that you Yeah, have gone before and you would want to recommend that you to me or to the audience also, if anybody wants to visit there? I visited Bombay twice.
I would definitely recommend people to visit Bombay, of course. Yes, yes, yes. And I've been to this Vishakhapatnam. It is beautiful. It is Shankar. very beautiful. Vishakhapatnam is really nice. Um, I've been to Udaipur, the Udaipur, city of yeah. lakes. It is beautiful. It is बहुत सुंदर है. गर्मी तो अलग है, but जो वैसे it's very beautiful. मतलब देखने यार लायक है, बहुत अच्छा कुछ है. लैंडस्केप है यार सच में, मतलब वो जग मंदिर में हाँ, खड़े होकर के, मतलब आई हैव टेकन दैट वो 360 वाला ऐसा वीडियो, मतलब इतना तब मुझे वीडियो वगैरह नहीं आता था, बट वो मैंने इंस्टा पे अपलोड किया एंड आई स्टिल विजिट दैट अगेन। उसमें वो पानी है और वो जग मंदिर का जो लाइटिंग एंड एवरीथिंग, दैट महल वहां से दिख रहा है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली बहुत डिजाइंड, beautiful. बहुत सुंदर लगता है एंड एवरीथिंग, मतलब अराउंड, मतलब वंस यू गो टू उदयपुर देन यू गो टू चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर, डू हाँ, एवरीथिंग। राजस्थान बहुत जयपुर, कमाल की चीज पुष्कर, है यार। अजमेर, all the cities are connected there. सब करेक्ट connected है. करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। राजस्थान is beautiful. अच्छा है, बहुत सुंदर स्टेट है. And I've राइट। also been once. I've also been to Ahmedabad. Ahmedabad is also very beautiful. ओके। Some of my relatives live there, so yeah, I've been to Ahmedabad, and it's a must recommended place. वहाँ पे ये आपका this statue, I think it's the statue of Sardar Vallabhbhai Patel. It's the पटेल या। largest statue in the world. Yes, in the world. It is very beautiful. And of course, the stadium, the largest stadium in the world, Narendra Modi Stadium. वो भी देखने लायक है. So yeah, these are some of the places that I recently visited. But last, I think I visited. I had a trip. I had a family trip in, I think, 5 years back or something. Since then, I've not traveled anywhere. I'm really longing to travel somewhere. Once I'm done with this attempts loop and all. Yeah. You will travel a lot. Like even I did the same thing when I finished my exams. I was just traveling for another 6 months. I was just here and there, like traveling, doing everything. So वो फ्री माइंड से है ना, वो अब बोलते हैं ना, जब हाँ. आपका दिमाग आजाद है ना, तो उसके बाद आप बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ बहुत अच्छे से करोगे। मैं पहले भी बहुत ट्रैवल करती थी, लेकिन वो ट्रैवल के जर्नी में बहुत सारे ऐसे ना छोटे छोटे तकलीफें जुड़ी रहती थी। लाइक आई वुड, आई लव टू ट्रैवल सोलो। सो मतलब मेरा ऋषिकेश, कुर्ग, Yes. गोवा, अ लॉट ऑफ ट्रिप्स दैट आई हैव डन अलोन। मैंने ना बहुत शांत रहना वहां से सीखा है यार। आई स्टिल रिमेम्बर द नाइट इवनिंग्स दैट आई स्पेंड नियर गंगा इन ऋषिकेश में, बहुत शांत रहती थी मेरे, बहुत It's मतलब beautiful. आई इवन आई टेल। Varanasi is हाँ हाँ। also a yes, वाराणसी ना, beautiful place. Varanasi. Yes. बनारस जाना प्रयागराज. है सच गंगा में। आरती शाम में बहुत सुंदर है. Good, good, good. So, chalo, a lot of goals, travel goals that you have given to people. That is so nice of you. Chalo, I'll ask you one last question, and that is for you only. But I want you to commit something over here. So, throughout your day or the way you are spending your life, there is one thing that might be troubling you a lot, right? There could be one thing that has become your habit to do, but you want to leave it. You want to leave it because it is not helping you achieve your goal. Maybe it can be something about कभी कभी किसी से हमारे रिश्ते में थोड़ी सी खटास हो जाती है, लेकिन just because of our ego we are not going and talking to that person, उसकी वजह से वो रिलेशनशिप, मतलब एक बार एक कदम कोई उठा ले, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मैं एक बार वो कदम उठा लूं तो शायद मेरा Yeah. रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ में, राइट? सो एनीथिंग दैट यू स्टिल रिग्रेट, कि काश उसके लिए वो एक छोटा सा आप स्टेप ले लो, और सपोज सम बैड हैबिट दैट यू हैव एंड यू आर लाइक नो नो आई हैव वांट टू लीव इट, सो दैट वो छोड़ दिया तो मेरा जिंदगी भर सफल, वैसा। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू कमिट एंड यू वांट टू मेक श्योर कि दिस फ्रॉम commitment on this day help you actually improve your life? There is one very bad habit of mine. I have some serious trust issues with the person I'm with right now. And why I do have so much trust issues? Because I'm insecure in my own self. मुझे अपने आप में इनसिक्योरिटी है, इसलिए वही प्रोजेक्ट होती है सामने वाले इंसान पे. मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर मैं खुद पे काम नहीं करूंगी, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम नहीं करूंगी, तो मैं वही, मतलब मैं सामने वाले को भी वही सिर्फ दे पाऊंगी. मैं खुद इनसिक्योर हूं तो मैं वही दूंगी.
until and unless I don't work on my insecurities, my own trust issues, I won't be able to improve my relationship with that person or with myself for that matter. So yes, I want to keep this habit as soon as possible. Of course, being insecure always or seeing less of myself than others कि यार वो आगे निकल गया, वो वहां पे पहुंच गया, उसका क्वालिफाई हो गया, मैं तो अभी भी यहीं पे हूँ. एंड कुछ भी, या फिर द पर्सन आई एम विद, उस पे भी कुछ ना कुछ डाउट चल रहा है या कुछ इनसिक्योरिटी हो रही है या वट एवर इट इज. सो दीज आर, दिस वन हैबिट, और इस दिस इवेंचुअली टर्न इनटू ओवर थिंकिंग. चाहे वो मैं खुद से करूँ या फिर वो पार्टनर के साथ हो, कुछ ना कुछ फिर वो ओवर थिंकिंग का फॉर्म ले लेती है, और फिर मेरा पूरा दिन या बहुत दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरा इसमें निकल जाता है सोचते कि अच्छा वो उस समय क्या कर रहा होगा, मैं क्या करूँ, ऐसा वैसा. आई एम मेकिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन माय हेड ओनली. फिर वो चीज बढ़ती जाती है, इवेंचुअली इट हैम्पर्स माय ओन रिलेशनशिप विद माई सेल्फ एंड विद दैट पर्सन ऑल्सो. This is something I really want to eradicate from my mind and my body everywhere. What you just said, Yes. and I'll not say much on this, but what you just said now, just that, just it's like I'm listening to myself, and I used to be like this. Maybe just because shadi ho gayi and the person is with me, so I don't have that thing now. So this will completely eradicate. मतलब ये चला ही जाएगा life से. You will not even think about it. Like post your, if you continue to be in the be in the life of that person and he's there in your life, that will completely go. But as a human, we need to improve, right? Because this is killing us, this is killing our own personalities. So I'm not saying much anything on this. I don't want to say, I don't have a lot of uh, yeah, insights about this, why we do that, why we do this. But with your own experience, like whenever we have the next podcast on this channel, I want to revisit this question, and maybe I want to see what you have done to improve this, like how this journey has been. So you are already working on it, I know, like it's not that I don't know, but I want to hear more about this thing when we next meet and have this conversation. Sure. And with that, we can Definitely. close this I would love podcast. to talk so much, so much. I would love to chit chat with you like for hours. Will definitely do that a lot. Like you come to Bombay, we'll just sit with Yes, our, like my favorite coffee. And what do you prefer, tea and coffee? More it's trying. chai, na? Proper chai person. Okay, so I'll have my cup of coffee, you can have your favorite chai. I can make a lovely chai, by the way. So वो मैं बनाती हूँ, and definitely we will have lot of beautiful evenings together talking about life. And trust me, it's been Definitely. such a pleasure having you on this podcast. इतना, it's like sometimes कुछ लोग आपको लाइफ में ऐसे मिलते हैं जिनसे बात करके ऐसा लगता है कि यार यही तो आप हो, लाइक थोड़ा सा यंगर वर्जन, हाँ, एक हाँ. जैसी बातें, एक जैसी एक्सपीरियंसेस, राइट? सिर्फ नाम And पर्सनालिटीज I अलग see है. you as my older version. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े होके मैं एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल ऐसे होने वाली हूँ, मुझे पता है. 100% ऐसा ही होने वाला, 100%. एंड यू विल डू समथिंग लाइक दिस ओनली. द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, यू विल बी डूइंग एग्जैक्टली दिस, आई एम टेलिंग यू. मे बी उसका वर्जन डिफरेंट होगा, बट यू आर गोइंग टू बी पीपल पर्सन. I know that for sure. Your personality is like that. You are going to be the famous Vidushi Sharma in whatever form you will do. Like I know one of your dream also, when you said that I want to be MC or something like that, right? Or maybe we just spoke about it. I'll have one event. I want you to be my MC because the way you talk. So something you will pick up in life that will become your professional career, I'm telling you, and that will be related to you interacting with a lot of people. Definitely. So your journey so far has been truly inspiring, Vidushi, and I know our listeners have learned a lot from your experiences, and they will continue to learn. So thank you so much for sharing so many things about your life, and hoping Thank to you for having record. me so much. Yeah, hoping to have you here very soon again. November, December, January में टारगेट करते हैं. January रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाओगे आप, उसके बाद में we'll have आप next session डर then. बोलो, मैं तो सब रेडी हूँ.
Okay, madam. Okay, all right. Chalo, have a great evening. Rest of the evening ahead. Thank you so much for giving such a valuable time of yours. I know you are preparing for exams, so Thank you. I Thank also you so want much. to wish you all the very best. Just one last word. Few last words that you want to say to our audience before we close this podcast. Please stay with us till the end. Please don't leave us. हमारा साथ मत छोड़ना, इतना तो ये बना दिया, हम भी अभी लाइन में लग गए हैं, हमें भी बनना है. अरे बिल्कुल बिल्कुल That's यार. it. Definitely, and I'm sure our audience will enjoy this conversation. So let's hope for the best for your results, also for your preparations for your result. All the best to you, and bye. Bye We'll bye wait. bye We'll bye. we'll wait for you again on this podcast. Yes.